And our today's lesson is solved exercises of lesson 9 of class 10 English reader first flight. The lesson is Madam Rides the Bus. We have already studied the explanation of this lesson in 3 parts. Part 1, Part 2 and Part 3. And now, after the explanation, let's study the exercises of this lesson. Dear students, I have solved the questions for you. But the best thing is to write the answers yourself. The best answer is the one you write at your own. So be confident and try to develop your own answers. Question 1 is, what was Wally's deepest desire? Find the words and phrases in the story that tell you this. बर्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी? और इस स्टोरी में कौन से वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जिससे आपको उसकी इस डिजायर का पता चलता है? द आंसर इज Wally's deepest desire was to go on a bus ride. सबसे बड़ा डिजायर उसका था बस राइड पर जाने का. The words and phrases in the story that tell this are source of unending joy, stare wistfully, and kindle in her longings, dreams and hopes. ये जो 3 phrases दिए हैं स्टोरी में, source of unending joy, कभी खत्म ना होने वाला joy, stare wistfully, बड़ी इच्छा से उत्सुकता से देखना, kindle in her longings, dreams and hopes. Kindle means feelings. उसकी जो feelings थी, strong feelings, longings, उसके dreams, उसकी आशाएं, सपने, इन सब phrases से हमें पता चलता है कि वल्ली का deepest desire क्या था. Second question is, how did Wally plan her bus ride? वल्ली ने अपनी बस राइड कैसे प्लान की? What did she find out about the bus? And how did she save up the fare? उसने बस के बारे में क्या-क्या पता लगाया? और उसने बस फेयर कैसे सेव किया? The answer is, once she decided to travel by bus, she started listening to her neighbors' conversations about their bus rides very carefully. जब वल्ली ने डिसाइड कर लिया कि वो बस में राइड करने वाली है, तो उसने अपने नेबर्स की बातों को, कन्वर्सेशंस को बड़े केयरफुली सुनना शुरू कर दिया. Wally found out that the town was 6 miles from the village and it costs 30 पैसे to travel one side. अब वल्ली को ये भी पता चल गया कि उसके विलेज से टाउन का डिस्टेंस है 6 miles और उसके लिए बस फेयर लगेगा 30 पैसे. It took 45 minutes to reach town and the same bus could bring you back as well. और एक तरफ पहुंचने के लिए उसको लगेंगे 45 minutes और उसी बस में वो रिटर्न भी कर सकती थी. She collected the money with utmost determination. She resisted every temptation and finally saved 60 पैसे. वल्ली ने मनी कलेक्ट की. उसने बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ कि मैंने मनी कलेक्ट करनी ही है. उसके लिए उसको बहुत सारी टेम्पटेशंस, बहुत सारे लालचों को छोड़ना पड़ा, रेजिस्ट करना पड़ा और फाइनली वो सक्सीड हो गई 60 पैसे सेव करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what kind of a person is Wally? To answer this question, pick out the following sentences from the text and fill in the blanks. The words you fill in are the clues to your answer. वल्ली कैसी लड़की है? इसका आंसर देने के लिए आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, कुछ हिंट्स दिए गए हैं. नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं. आप बुक में से इन सेंटेंसेस के ब्लैंक्स को फिल अप करेंगे. फिर उन सेंटेंसेस के बेस पे आप अपना आंसर लिखेंगे. That what kind of a person is Wally? वल्ली कैसी लड़की है? So here are the 6 sentences in your book. You'll have to fill in the blanks and then write the answer. Here I have filled in the blanks for you. First is, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. इससे वल्ली का पता चला कि वो रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी, commandingly. As a form of order वो बस को बोल रही थी, रोको रोको. Second is, yes, I simply have to go to town, said Wally still standing outside the bus. इस सेंटेंस से पता चलता है कि वल्ली घबराई नहीं. कंडक्टर के पूछने पर उसने सीधे सीधे उसको बता दिया कि उसे अकेले ही टाउन में जाना है, बस इतनी सी बात है. The third sentence is, there's nobody here who's a child, she said haughtily.
I have paid my 30 पैसे like everyone else. जब एक एल्डरली मैन ने वली को क्वेश्चन किया कि क्या तुम अकेली जा रही हो, और बच्चे कहा उसको चाइल्ड कहा, तो वली नाराज हो गई और उसने कहा यहाँ कोई चाइल्ड नहीं है, मैं भी अपना बस फेयर पे कर रही हूँ। इससे भी वली के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। फोर्थ सेंटेंस इज नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड। इस सेंटेंस से पता चलता है वली खुद को चाइल्ड नहीं एक ग्रोन अप गर्ल कंसीडर करती थी और वो सेल्फ डिपेंडेंट थी। उसे कंडक्टर की हेल्प नहीं चाहिए थी टू गेट ऑन द बस। फिफ्थ सेंटेंस इज यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। एक एल्डरली मैन ने जब वली के बारे में चिंता की तो वली ने उसको रिफ्यूज कर दिया, बोला मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। यहाँ से भी वली के सेल्फ डिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट कैरेक्टर का पता चलता है। सिक्स सेंटेंसेस, देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। ये सेंटेंस बताता है कि वली का बिहेवियर बहुत ही रिफाइंड था एंड शी वॉज अवेयर ऑफ द मैनर्स। नाउ दिस इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन, जो कि हमने इन 6 हिंट्स के बेस पर डेवलप किया है। और ये 6 सेंटेंसेस हमने इसलिए इतने इलेबोरेटली डिस्कस किए बिकॉज आपको यहाँ से वली का कैरेक्टर स्केच लिखने में भी हेल्प होगी। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि वली कैसी पर्सन थी, तो वली वॉज अ कॉन्फिडेंट गर्ल who did not think that her age was a limitation to her traveling alone to the town. वली एक कॉन्फिडेंट गर्ल थी जिसको नहीं लगता था कि उसकी 8 इयर्स की एज उसके लिए लिमिटेशन है और वो अलोन ट्रेवल नहीं कर सकती टू द टाउन। She considered herself a grown up and acted like one. वो अपने आप को ग्रोन अप कंसीडर भी करती थी और वैसे ही एक्ट भी करती थी। Question 4 is, why does the conductor refer to Wally as madam? कंडक्टर वली को मैडम क्यों कहता है? वो तो जस्ट एक 8 years old गर्ल है। The answer is, the conductor called Wally madam as she behaved like a grown-up and did not think that she was a child. वली को मैडम इसीलिए कहता है वो क्योंकि वो बिहेव भी ग्रोन अप की तरह करती है और खुद को चाइल्ड नहीं समझती। She also refused his help and told him that she can manage on her own. जब भी कंडक्टर ने वली की हेल्प करने का ट्राई किया तो वली ने हमेशा ही रिफ्यूज कर दिया और उसको कहा कि वो एक ग्रोन अप है और अपनी हेल्प खुद कर सकती है। Now question 5. Find the lines in the text which tell you that Wally was enjoying her ride on the bus. टेक्स्ट में से ऐसे सेंटेंसेस फाइंड आउट करें जिससे पता चलता है that Wally was enjoying her ride. So the answer is, the text which tells that Wally was enjoying her ride on the bus is as follows. First is, oh, it was all so wonderful. इससे पता चलता है वली अपनी बस राइड एंजॉय कर रही थी। सेकेंड इज, सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। एकदम से खुशी से वली ने क्लैपिंग शुरू कर दी। थर्ड इज, somehow this was very funny to Wally. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. ये वली के लिए इतना फनी था कि वो तब तक लाफ करती रही जब तक उसकी आईज में टीयर्स नहीं आ गए। The last sentence is, struck dumb with wonder, Wally gaped at everything. वली तो इतनी हैरान हो गई कि वो मुंह खोलकर हर चीज देखने लगी। So students, these are some of the sentences जिससे हमें पता चलता है कि वली अपनी बस राइड को एंजॉय कर रही थी। Question 6 is, why does Wally refuse to look out of the window on her way back? वापिस जाती बार वली ने विंडो से बाहर देखने के लिए रिफ्यूज क्यों कर दिया? वो तो बहुत एक्साइटेड थी, उसको तो सीनिक ब्यूटी बहुत पसंद थी। The answer is, Wally refused to look out of the window on her way back as she saw the dead body of the cow who was running towards the bus. This made her sad and frightened. वली ने विंडो से बाहर देखने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया जब वो टाउन से वापिस आ रही है, क्योंकि टाउन को जाती बार जो काव उसकी बस के आगे आगे भाग रही थी, वली उसको देखकर बहुत खुश थी। अब
उसी सेम काव की डेड बॉडी देखकर बहुत ही सैड एंड फ्राइटेंड, डरी हुई है। Question 7 is, what does Valli mean when she says, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge? वल्ली ने जब ये कहा तो उसका क्या मतलब था? कि मैं आपके साथ एग्री कर रही थी कि जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं उनका हमें नॉलेज नहीं है। The answer is, Valli agreed to her mother's statement that things happened without our knowing about them. वल्ली अपनी माँ की इस स्टेटमेंट को एग्री कर रही है कि चीजें हो जाती हैं हमारी नॉलेज के बिना ही। She meant to say that her mother was ignorant about her bus ride. और ये सेंटेंस वो क्यों कहती है कि कौन सी बातें नॉलेज के बिना हो जाती हैं, तो वो थी वल्ली की बस राइड। वल्ली बस राइड करके आ रही है लेकिन उसकी मदर के उससे इग्नोरेंट है, उसको पता ही नहीं है कि उसके अराउंड कौन कौन सी हैपनिंग हो रही हैं। I hope you have understood the question answers of this lesson. We have completed a lesson in 4 videos. To watch these videos and to watch all other videos of class 10 English, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you.